Substation at Barsoom, Paragon has been proposed in the prospective transmission plan for the UT of JK for the period 22 to 27. The projects under the said transmission plan, including grid station at Barsoom, are being implemented in a phased manner, depending on load, growth, and technical feasibility. It is pertinent to mention that as per the current guidelines issued by the MoP and tariff policy, costing above the threshold limit set by the JERC could be executed to the TBCB mode. Based on the JERC regulations, 100 crore fixed as this regard. It is being examined to determine the most suitable mode to be adopted for the above said transmission project, and the decision shall be taken in due course based on the present price level of the project. As far as the acquisition of land is concerned, the identification of land for the said grid substation is underway. सर ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो मैंने सवाल पूछा था रिगार्डिंग ग्रिड स्टेशन, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें क्लियरिटी नहीं है। मैंने कहा प्रपोजल लैंड एक्विजिशन की जो बात में, तो इन्होंने इसमें जवाब लिखा है डिपार्टमेंट ने कि बटकूट में कहीं पे लैंड अवेलेबल है ही नहीं। द ग्रिड पावर ग्रिड स्टेशन हैड ऑलरेडी मेड ए सर्वे इन सरल। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, एक तो कमिटमेंट आर वी गोइंग टू डू इट, कोई टाइम फ्रेम बताइए, और दूसरा इसमें सर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड कहाँ पे कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं। होप दैट दिस विल बी टेकन अप एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, आई नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, बनाने का तो बिल्कुल इरादा है, प्लान में भी है, और 27 से पहले बनाना है। अब ऑनरेबल मेंबर की तरफ से ये खर्चात जाहिर की गई है कि बटकूट में जमीन है नहीं। हमने फिलहाल जवाब में ये कहा है कि आइडेंटिफिकेशन फॉर लैंड फॉर द ग्रिड स्टेशन इज अंडरवे। अगर ये पाया गया कि बटकूट में जहां ये प्रपोज्ड है, अगर सूटेबल जमीन वहां पे नहीं है, अगर आसपास में कहीं जमीन है या पहले से सरकारी जमीन है या आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। फिलहाल इरादा इसको बटकूट में बनाने का है। अगर वहां जमीन नहीं मिलती तो आसपास में बना लेंगे। अब AQ नंबर 886 Sir, AQ number 886. A community health center symbol is not given for upgradation to the sub-district hospital as per IPHS 2022 norms for following reasons. Number 1, as per IPHS 2022 guidelines, districts with a population of less than 5 lakh and a functional district hospital do not require a sub-district hospital. District Bandipora with a population of less than 4 lakh as per 2011 census. And a functional DH Bandipora is not eligible for an SDA. However, SDH Dawar Buddhist has been sanctioned in the district being a snowbound area. Number 2, around 14 health facilities are catering to the primary health care services. TCAC symbol is well equipped in terms of manpower, machinery, equipment, infrastructure, dialysis unit, medical emergency equipment, and 2102/108 ambulances is already serving as a critical health care hub in district Bandipora. 4 higher level facilities, JVC, Sikkim, Srinagar, and District Hospital Bandipora are available at a distance of 21 km and 35 km respectively. 5 recently block public health unit is being developed as CAC symbol under PM ABHIM, for which tenders opened and technical evaluation under progress. This shall an important linkage to higher facilities. 6. Moreover, the department is focusing on consolidation of existing health institutions by way of strengthening manpower. सर, उन्होंने कहा कि जो फिजिबिलिटी वो नहीं बनती है, जो उन्होंने सेंसस किया वो 2011 के सेंसस के हिसाब से बिलो 5 लाख है। आज एज ऑफ नाउ जो पॉपुलेशन वहाँ डिस्ट्रिक्ट की है वो अबव 5 लाख है सर। दूसरी बात ये है कि मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, जो लॉट ऑफ
पॉपुलेशन जो कैटर करती है मेर वो CHC सुंबल और CHC हाजी सर। सर ये जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी है बांडीपुरा में, एक तो वो 35-40 किलोमीटर दूर है सर। दूसरी बात है वहाँ भी वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए, और दूसरी बात सुंबल में वो फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, ना पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है सर। ये कैसे पूरा कर सकते हैं? अभी जो इंट्री मैनेजमेंट चल काम देते हैं कि वहाँ फिजिबल लोकेशन फिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थिंग्स, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन which is less than 5 lakh, 5 lakh, less than 5 lakh, so it doesn't qualify for the feasibility. But for the fact that most of the areas which is not being covered and catered by the district hospital Bandipura, as it is far away from Sumbal and Hajam. So बहुत दूर पड़ता है, तो जो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो वहीं पे ठीक होते हैं, सुंबल में ठीक होते हैं। तो कोई है इंतजाम उनका कि वो जो कमी है वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की या मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? सर पहले जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने अपग्रेडेशन की बात है वो हमने पूरा इनको तफसीलन जो है जवाब में बता दिया कि अभी अपग्रेडेशन के लिए डिपार्टमेंट के पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने कल भी बताया है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये खुद मानते हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, अगर और एक अपग्रेडेशन देंगे तो फिर और ज़्यादा कमी आ जाएगी। मैं इनसे अभी इसी पे कंसोलिडेशन पे जो है अभी एक्सटेंशन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी कमी है कह रहे हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को जो है वो रेफर किए गए हैं पोस्ट, ये कमी जो डॉक्टर्स की है या पैरामेडिकल स्टाफ की है उसको हम पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे हॉस्पिटल बेहतर से बेहतर बन सके जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी देगा उस वक्त इसको देखा जाएगा, एग्जाम किया जाएगा। सर आपकी परमिशन चाहूंगी, ये जो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स इस साइड में भी उस साइड में भी मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा की बात की है, ये खुद जानते हैं कि हिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज जो है वो ऐसी जगह पे बनाया गया था और जो 40 करोड़ रुपया लगाया गया है वो जाया हो गया है, क्योंकि बुलंद सारा एरिया जो है वो फ्लड एरिया है। वहाँ अगर कभी भी एक दिन की बारिश होगी तो वो सारा जो है बह जाएगा। इसमें चिट्ठी लिखी हुई है ताकि टाइमलाइन जो है वो बढ़ सके, ताकि ये जो इस वक्त इशू है रिलोकेशन का, इससे हमने ऑलरेडी हमारी डिपार्टमेंट की चिट्ठी मैंने खुद साइन की हुई है, बहुत देर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई। हम कोशिश करेंगे कि ये पैसा जो है जाया ना हो सके। कोई जवाब आया है वहां से? सर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तकरीबन 6 महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल अंबारा में ही है, यहाँ हॉस्टल होगा और बच्चे पढ़ेंगे। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लाइए, जितना कम फासला होगा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए उतना पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ कौन सा हेल्थ प्रैक्टिस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मोहतरमा जो मिनिस्टर साहब हैं परसों इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे डोंट किल दिस हॉस्पिटल, दैट्स इट। आज नहीं था जो मैंने परसों कहा, आज भी मैंने वही बात की जो मैंने परसों बात की कि कॉलेज को रिलोकेट करना बहुत जरूरी है और वो पैसा जो लगाया गया 40 करोड़ को जाया हो चुका है। मैंने परसों ही भी यही कहा, आज भी यही कह रहे हैं। जो जगह हमने आइडेंटिफाई की हुई है, यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ये भी अपने बोर्ड ऑफिस यूज करें तो जगह जल्दी से जल्दी दे दें ताकि बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो पाए। मैंने परसों भी यही कहा, आज भी यही कह रही हूँ। उसने पूछा कि जमीन कहाँ है, ये क्या दिखाएंगे? जमीन ही नहीं है, इट्स बाउंड टू लैप्स, जमीन है ही नहीं। और ये बोल रहे भाई इधर लाओ उधर लाओ, अरे पहले एक हॉस्पिटल से लाया है। वहाँ जमीन ले सकते हैं, आपकी सरकार
सरपंच साहब, सरपंच साहब, कैसर साहब, आप कैसे बैठे ना, कैसे बैठे, अच्छा कैसे बैठे, कैसे जमा, से जमा हो गया, कैसे बैठे, कोई बात नहीं, आप तो सही मानेंगे, यहाँ क्यों है? कोई ऐसे नहीं काम क्यों है? इससे कोई बात निकाल मत करो, कोई बात निकाल नहीं हो गया, यहाँ करनी है अपनी जगह पर जाओ, अपनी जगह पर, यहाँ मैं बात जाओ। एक ही है कि ये धंधा है और सबों की डिमांड जो है सजा साहब ने कहा, मीर साहब ने भी कहा, कैसे साहब ने भी कहा कि ये जो जगह पहले थी उसका जवाब मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया। अब जो दूसरी जगह उसमें प्रॉब्लम शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ है, उसके साथ में भी आधे किलोमीटर जो कुपवाड़ा और खंडवाड़ा वहां पे जगह है, अगर वहां पे कुछ दिक्कत है, मकसद जब यही है कि ये बनना चाहिए, बस हो जाए, सभी एक ही पेज पे है, कोई किसी के खिलाफ नहीं। कोई आपकी बात नहीं बताइए। सर इनको जो खदशा है, ये कह रहे हैं शायद मेडिकल कॉलेज जो आया है उसको कोई छीनना चाहता है, वो बात नहीं है। मैं ऑनरेडी मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप बैठ जाए, अगर ये इस हाउस में चाहे वो सजाद साहब हो, फयाज साहब हो, या यहाँ से सैफुल्लाह साहब हो या कैसर साहब, अगर ये इस हाउस में हमें कमिटमेंट करे, लिख के दे कि ये जो जमीन पहले आइडेंटिफाई हुई इसमें कोई खतरा नहीं होगा, तो मैं आज भी तैयार हूँ वहीं पे बनवाने की। अगर ये आज यहाँ पे आपके सामने इस चीज का एतराफ करे कि जहाँ मेडिकल कॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा था वहीं पे बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर इसकी जिम्मेवारी नहीं है, बात सुना करे आप प्लीज बैठे, आप कुर्सी कीजिए। अगर ये यहाँ पे कमिटमेंट करे, मैं अभी आपके सामने अमृत हाउस के सामने बताना चाहूंगी कि मैं आज ऑर्डर इश्यू करूंगी और कल से उस मेडिकल कॉलेज में काम होगा। और ये पार्टीबाजी मत करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है और गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज बनाया गया वहां पे। आपने 2 साल पहले मैं जिन्होंने आइडेंटिफाई लोकेशन की है, सर मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहती हूँ, मैं जरूर एक टेम्पररी ऑर्डर इशू करूंगी। अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन आप प्लीज बैठ जाइए, एक सेकंड बात करें। मैं जरूर एक टेम्पररी ऑर्डर इशू करूंगी कि किस बुनियाद पे रिवर के पास में भी लैंड आइडेंटिफाई हुआ था। और ये 2 साल हो गए, 22 से मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ, आज तक क्यों नहीं बना ये मेडिकल कॉलेज? आप आगे रहने वाले हैं, आप जाके देख लीजिए, बोलने की बात नहीं है, आप जाके देख लीजिए क्या बनाया वहां पे। आज कुछ भी नहीं बना, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए, मुझे कंप्लीट कर दीजिए, बात कर लीजिए, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। ये मत पार्टी का काम अपने ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात है और मेडिकल कॉलेज की जगह अगर आप यहाँ पे कमिटमेंट करेंगे हाउस के सामने, मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ वही मेडिकल कॉलेज बनेगा जहाँ आपने शुरू की है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, मेडिकल कॉलेज सबका मेडिकल कॉलेज है, मेरा भी हम सबका साझा मसला है, किसी एक इंसान का मेडिकल कॉलेज नहीं है। जिससे भी आया उसका क्या मतलब है? हुकूमतुल्लाह साहब ने हमारा मेडिकल कॉलेज दिए तो हमारा डिस्ट्रिक्ट थे, उसका जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करेंगी, आई वॉन्ट द डीसी ऑफ दैट टाइम एंड टोल्ड हिम कि आई फ्लड टोल्ड ही टोल्ड मी कि मेरे पास फ्लड और उसके लिए, मैंने बोला बचपन में मैंने देखा वहां पानी होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं माना और जो आज की साइड है कोई उसके हक में नहीं था, वो किसी ने वो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में था। और मैं जो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि प्लीज डोंट, मुझे मालूम मे बी आई नो समथिंग,
ये जो फंडिंग है ये पहले ही 1 साल एक्सटेंड हो ये पैसा जाया नहीं, ये अभी माफी है अभी भी माफी। गवर्नमेंट ने देखिए सब आपने पेपर किया है, मगर साइमल्टेनियसली गुजारिश करूंगा आपसे, ये तमाम जो पब्लिक है कंसर्न उनके साथ बैठ के अगर कोई रास्ता निकलता है, दैट विल बी द बेस्ट कोर्स। ये ठीक है गवर्नमेंट ने देखिए सब पेपर किया, आपको जवाब दे देंगे, आपने ऐसा किया सेफ कोई पैसा जाया ना, वो तो आपने पेपर किया, लेकिन इमीडिएटली आप इन सबको कॉन्फिडेंस में देखिए, सबको सबका मशवरा देखिए, कोई रास्ता अगर निकल जाता है तो हाँ जवाब साहब आपको कुछ और पूछना है? Sir, I'm not satisfied with the answer given by the Honorable Minister. हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक और सब डिस्ट्रिक्ट बन रहा है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ फिजिबिलिटी का मसला नहीं है, चेक करा रहे हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मांडीपुरा में, तो वहाँ कैसे फिजिबल है, यहाँ कैसे फिजिबल नहीं है? मैंने आपको बताया नॉर्मल जो इस सिलसिले में नॉर्मल नहीं आता है, जहाँ पे बना रहे हैं ना सर, वो भी नॉर्मल नहीं आता है। नहीं वो आप दूसरे के साथ कंपेरिजन मत करो, ये आपके नहीं, comparison के बात है, सर। आपके हॉस्पिटल की बात है। इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी वो फिजिबल नहीं बन रहा है। मैं कहता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है जिस जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, वो कैसे फिजिबल बन रहा है? अच्छा लेवल मेंबर को कह दिया है कि हम इसको करेंगे एग्जामिन, किसी लेवल पे भी अगर हमें लगता है कि सीरियसली वहाँ पे जरूरत है उसको एग्जामिन किया जाएगा और एज पर गाइडलाइन जो है उसको देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। नहीं करेंगे, इसी के बारे में अगर पूछना तो पूछ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। कि अगर ये पॉपुलेशन बेसिस पर है तो इसका उसके बदले जो क्राइटेरिया रखना चाहिए वो फुटफॉल ऑफ द पेशेंट्स होना चाहिए, किस जगह कितने पेशेंट है, वो दैट्स माय रिक्वेस्ट सर। चलिए एहसान अहमद परदेशी साहब, मिनिस्टर इंचार्ज है, हमें हेल्थ और हेल्थ पर अगर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट बैठ सुनिए ना, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। नहीं हेल्थ के बारे में कई क्वेश्चन है, उसका मतलब नहीं कि हम सबको क्लब करें, ये अगर एक ही क्वेश्चन है आपका भी यही क्वेश्चन है तो ये क्या है सर बोलिए। number 177A, yes, the pediatric hospital Sonawari stand shifted to Bimena on 26/9/2002. B, no government chest disease hospital Srinagar is currently running pulmonary OPD in old GP Pant Hospital Sonawari and basic facilities like basic biochemistry investigations, ECG and X-ray tests are available here. Besides, CT scan is done once a week. Besides, within the said periphery and the Kashmir Nursing Home Sonawari caters to the requirement of local population which runs OPD services regularly. ऑनरेबल सर, मैंने जो एक कंसर्न रेज किया था सर रिगार्डिंग जी अपन हॉस्पिटल जो पहले बच्चों को हॉस्पिटल हुआ करता था सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 60-70 हज़ार लोगों के पास एक इमीडिएट हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है सर। जवाब में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि जीबी पंत सिविल हॉस्पिटल जीबी पंत में ओपीडी रन करा है सर, लेकिन एक टाइप की ओपीडी रन करा। इसमें से जवाब आया है कि गुपकार नर्सिंग होम ग्लोबल एरिया को कैटर करता है सर, लेकिन गुपकार नर्सिंग होम में भी सिर्फ 2 टाइप के डॉक्टर आते हैं, एक ऑप्थेमोलॉजी का, एक फिजिशियन का, एक गायनी का, वंस ए वीक सर विजिट। सर मेरा कंसर्न ये है और मेरा मुद्दा मकसद ये था कि सर जो जेबी पंत का हॉस्पिटल जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम एक जनरल हॉस्पिटल की तरह जो है लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सर, एक मैंने से डिमांड की थी कि एक जनरल टाइप हॉस्पिटल हो जहाँ पे मल्टीपल टाइप की फैसिलिटीज हो, ताकि लोगों को सर आज मामूली खांसी जुकाम के लिए सर वहां से बिना जाना पड़ता है, 4-4 घंटे का सफर है सर। अगर हुकूमत जाएगी तो सर जेबी पंत को एक अच्छे खासे इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, इसको इस्तेमाल करके लोगों के खिदमत में ला सकती है।
जिसमें तकरीबन से 60-70 हजार लोगों को डायरेक्ट रिलीज हुआ है, सर फायदा मिलेगा। सर जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीपी पर हॉस्पिटल जो है वो बहुत मतलब था, वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलें थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये हॉस्पिटल जो है जेवीसी उसको शिफ्ट कर दिया है। जहाँ तक इनकी बात है, मैं खुद भी गई हूँ वहाँ जीपी पर में इनके साथ, मैंने विजिट किया हुआ है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसमें डिसीजन नहीं किया है कि इस बिल्डिंग का जो है इस तरह, अभी मैंने अपने सवाल में बता दिया है अभी क्या क्या वहाँ पे चल रहा है, एक्सरेज हो रहा है या बाकी जो भी है, लेकिन अभी इस हॉस्पिटल का आगे क्या यूज करना है वो ऑलरेडी हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर हमें लगा कि ये लोगों के लिए काम आ सकती है बिल्डिंग, हम वहाँ पे कोई यूनिट रख सकते हैं, तो इसको जरूर हम एग्जामिन करेंगे। मैं खुद गई थी, मैंने वहाँ पे देखा, ये ऑनरेबल एमएलए साहब भी मेरे साथ थे। मैं इनको यकीन दिलाना चाहूंगी, इनके साथ बात करके जो भी पॉसिबिलिटी निकल आएगी वो जरूर करेंगे, जिससे लोगों की मदद हो सके। ये मुझे का सवाल है हॉस्पिटल के महाराष्ट्र के बारे Reply to partly. Agriculture related sponsor schemes, CAPEX and HADB projects are being implemented by the Agriculture Department across district Udhampur, including Chinani constituency. 1,000 projects. In reference to Chinani constituency, 57 beneficiaries have been covered under HADB, 165 covered under MID, PMDS. Vaccination on edible oil, crude oil, and UV CAPEX during 2025. Details is enclosed annexuary. Parties major initiatives to enhance area expansion under niche crop, hill garlic, and promotion of traditional and exotic vegetables under CAPEX budget HADP 2024-25. Moreover, the blocks of Sirna and let vegetables and project AKCI in 2025-26 to enhance incomes of farmers, area expansion by plantation of high density plants of apple, walnut, pear, kiwi have been planned in due course of time in these areas. Besides irrigation infrastructure such as check dams, water storage tanks, water harvesting, potable geotags, etc. are a planned under as the vegetation of और भी एक दो पार्ट्स है। आपने पूरा सवाल जो है इतना बड़ा दे दिया, तो आपका जवाब सुनना भी आपका फर्ज बनता है। लगता है कि सेटिस्फाइड है आपके जवाब से, ये कहते हैं ठीक है जो आप कह रहे हैं। उसके क्वेश्चन और आ जाएंगे। दिखाकर है चिनैनी एरिया क्षेत्र ऐसा है कि जहां सबसे ज्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है पूरे जम्मू संभाग में, और खासकर उधमपुर की बात करें तो सर हमारे अगर बात करें कि पूरे जिला के अंदर 96,000 मैट्रिक टन हमारी वेजिटेबल ग्रो की जाती है, उगती है, और उसमें से चिनैनी में लगभग 57,000 सिर्फ चिनैनी में उगाई जाती है, और फिर हमारे पास पोटेंशियल वहां पे है लगभग 97,000 मैट्रिक टन का पोटेंशियल है हमारे वहां पे। तो मैं सर सरकार से जानना चाहता हूं कि चूंकि वहां सबसे ज्यादा स्कोप है, मैंने बताया, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, वहां पे आज तक केवीके कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक जिला उधमपुर में सरकार नहीं खोल पाई है, जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से मैंने कहा कि इतना हमारे पास स्कोप है, और आज हम हमारा रियासी का जो केवीके है उसके बिहार पे हमारा उधमपुर चल रहा है, वहां से हम जो रिसर्च वगैरह आते उसके ऊपर डिपेंड है हम। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार ने केवीके दिया है। हालांकि उधमपुर जिला में पिछले 10-15 सालों से, चाहे बारता का एरिया हो, जिताती का एरिया हो, हमारा लद्दा मादा का एरिया हो, बहुत सी जगह आइडेंटिफाई की, लेकिन अभी तक
फाइनलाइज नहीं हो पाया कि केवी के कब खुलेगा और कौन सी जगह खुलेगा, और मैं मंत्री से जानना चाहता हूं इसमें कब तक आप केवी के जिला उधमपुर को देंगे। या जहां तक इस इसके बाद हाँ उनको बराए करम करके किसी एम्बुलेंस या वायर उनको शिफ्ट किया जाए। अभी सर 10 मिनट पहले। ओके वो मैंने सुनी आपकी बात। सर जहां तक केवीके की डिमांड है, सही बात कहा ऑनरेबल एमएलए ने कि चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी एक हब हमारी एक्टिविटीज का वेजिटेबल्स को लेकर, और काफी पोटेंशियल है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल को टैप भी कर रहे हैं। जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं या यूटी कैपेक्स की जो हमारी स्कीम्स है, चाहे हॉर्टिकल्चर को लेके चाहे एग्रीकल्चर को लेके, मुझे लगता है डिपार्टमेंट बहुत हद तक अपनी जो शिद्दत से काम कर उसमें कामयाबी हासिल की है। आपका मेन मकसद है कि वहाँ केवीके होना चाहिए, तो इस डिमांड को हम एग्जामिन करेंगे सर, और कोशिश करेंगे कि ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, चाहे लाठी का एरिया हो, चनैनी ब्लॉक का एरिया हो, नरसू का हो, सिवना का एरिया हो, गोल्डी का एरिया हो। सर मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप भी है और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी है, उसमें इन्होंने जवाब भी दिया है, और मैं कहूंगा कि ठीक है इसमें अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत है इस एरियाज में, जैसे हमारा अखरोट है, सेब है, अलग अलग हमारे फ्रूट्स जो है प्लांट हैं, तो बंदर्स का बहुत आतंक है। तो उसमें आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मंकीज बंदरों का आतंक जो है, जिसकी वजह से हमारी 70-80% जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो बड़ा, जब हम बंदरों की बात करते हैं तो हम हंसते हैं, लेकिन मैटर बड़ा सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस कंसर्न है कि उससे कैसे बचाया जाए। ये जो हमारे फार्मर्स हैं सर मुझे वहां बिठा दें तो मैं आज ये सजेस्ट कर देता हूँ और फार्मूला भी दे दूंगा, लेकिन वहां बैठ के दिखता स्पीकर साहब मेरे से गुप्ता सवाल है। मेरे जिले से क्षेत्र मैं रिपीट कर लूँ इसमें मेरा रिस्पेक्ट, मेरे बात कर ले विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा हम्बल सबमिशन है कि चीजें जी बिल्कुल चीजें रिकॉर्ड पे जरा स्ट्रेट जाए। जिला उधमपुर में देयर इज अ सीसॉ बैटल बिटवीन टू कृषि विज्ञान केंद्र, वन सिलेक्टेड एंड देन अल्टीमेटली नॉट गिवन अ ग्रीन सिग्नल, अदर आल्सो लैंड सिलेक्टेड एंड नॉट गिवन अ ग्रीन सिग्नल। तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, आप दोनों केवी के इसको चलाएं, रामनगर वाले को भी उधमपुर वाले को, दोनों चलें। और दूसरा जो बनकोटिया साहब ने जैसा कहा, ये सारे हाउस के नॉलेज के लिए बता दो, लाठी, डुड्डू, बसंतगढ़, मोंगरी, पंचारी, गढ़ सामनाबाद, चोरपानिया, हमारा जो हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल है दैट इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। सरकार क्या इकदाम लेने वाली है? अनयूटिलाइज्ड, नॉट इवन 5% यूटिलाइज। सर हाई डेंसिटी लाएंगे आप कैसे प्रमोट करेंगे? और एचएडीबी में इस पेरिफेरल उधमपुर को आप कैसे फोकस लेके, जो सरकार का एक गॉस्पेल है कि एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर एंड पर्टिकुलरली पिसिकल्चर ऑल्सो, सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ट्राउट हमारे वहां कामयाब है, बट सरकार की तरफ से वहां कोई ऐसे टेंजिबल स्टेप अभी तक नहीं लेगी, जो लिए गए वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। देयर स्टिल एन अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल इन हॉर्टिकल्चर एंड पिसिकल्चर ऑल्सो इन द गुडवुड बसंतगढ़। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि 2009 एंड 10 में यहाँ एक इनिशिएटिव लिया गया था, और हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट है, क्योंकि इसमें हिमाचल में उन्होंने अपने कवानीन में अमेंडमेंट करके, क्योंकि ये इस पे ह्यूमन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेट में भी उसको रिविजिट करके सेंट्रलाइजेशन जो है, स्टरलाइजेशन के लिए उनकी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है, ये हैबिट मचा रहे हैं, हमने थोड़ा लाइटर मूड में लिया है। मुझे लगता है कि वो उनका मॉडल लेके हमें यहाँ अपने कवानीन में जो है अमेंडमेंट करके, तो मंकी मीन्स की जो तादाद बढ़ रही है, जनरेशन उनकी, उसको हम चेक लगा सकते हैं। स्पीकर सर, ये जो सवाल, ये मैंने ऑलरेडी आपको सवाल दिया है, शायद आया नहीं। ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम लोग इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी आज नौजवानों में नशे की आई है, उसी तरीके से जो मंकी है हमारे इलाके में सर, लोग घरों में नहीं बैठ सकते, सारी जमीन जो है वो तबाह और बर्बाद, जितना भी मिनट लोगों ने फसल लगाना बंद कर दी। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी कोई योजना बना रहा है कि यहाँ पे हमारी जो फसल मक्की की हो या
बाजरा हो या बाकी चीजें हो, उसके बजाय क्या कोई ऐसा आपका प्रपोजल है कि जो जमीनें लोगों ने छोड़ दी है उनको दोबारा कल्टीवेट करने के लिए क्या हल्दी या लहसुन या कोई ऐसी चीजें दी जाए जिसमें वो मंकी नुकसान ना करे ताकि वो फसल बच सके। और दूसरी बात यह है सर कि इसको हिमाचल पैटर्न पे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वहां का रोड मैप देखे किस तरीके से उन्होंने पहले इन पर कंट्रोल किया। अगर यही नहीं कंट्रोल किया गया तो मैं ये समझता हूँ सबसे आने वाला बड़ा खतरा है, क्योंकि लोगों ने जमीनें छोड़ दी है कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। स्टाफ को सर पिछले 4 महीने से पे नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। प्लीज इस पे आप इंक्वायरी कराएं कि ये क्या वजह है। बाकी सभी के भी की जो सैलरी निकल रही है। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ऑनरेबल एमएलए का एहसास को समझते हुए इस बात की खुशी है कि ऑनरेबल एमएलए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और इसके लाइट सेक्टर्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आपके जो सुझाव आए तो सुझावों पे हम गौर करेंगे। ये मंकी मिनिएचर जो है मेरे पास तो अभी ऐसी कोई है नहीं स्कीम में जिसको बोलूँ कि हमारे पास कोई पॉलिसी ऐसी है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करें, क्योंकि वही एक्सपर्ट्स हैं, वही बता सकता है कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं। इसी तरह एरिया एक्सपेंशन की बात की मनकोटिया साहब ने, उसमें एनहांस इनकम और फार्मर्स के लिए उसमें हमने हाई डेंसिटी के प्लांट्स देते हैं, एप्पल्स के, वॉलनट के, पेयर के, कीवी के और भी बाकी जो हमारे पास एक्सोटिक वैरायटीज हैं उससे, ताकि हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। ये है आपकी भी। ये यहाँ का सर ऑनरेबल मैंने बात आपके सवाल आगे भी आ रहे हैं, उनका भी ख्याल रखें। इरशाद रसूल खान साहब। AQ number 203. Yes, Minister in charge of irrigation and flood control. Sir, AQ number 203. Flood protection work for Nizli Nala approved under recently Nabad Release 30 with project cost of 16.89 crore. Is currently under execution. Regarding the modernization of the Janjeev Canal, DPR for an amount of Rs 44.85 crore has been prepared and shall be part of the shell of the project to be taken under the Nabad funding. Regarding the works on Guru Nala, it under FSC page second and one new execution under मिनिस्टर साहब, जवाब तो लंबा है, वो विल ट्रीट इट एज रेड। वो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देना। सर, जैसा कि मिनिस्टर साहब के जवाब से लग रहा है, कुछ इन नालों पे जो इरिगेशन नाले हैं इन पे 14 स्कीमें हैं हमारी पानी की, और इनमें से मेन जो है बादशाह जैनुल आबिदीन की देन है 47 किलोमीटर नहरी सनगेर सर, जो पिछले 10-12 साल से नेगलेक्ट का शिकार हुआ है। ना ही ये इरिगेशन के काम आ रहा है हमारे, ना ही पानी के पीने का काम आ रहा है, क्योंकि 15वीं सदी में बना है। हमारी जंजीर की ज्यादातर आबादी इसी नहर के इर्द गिर्द बसी हुई है। आज की डेट में इसकी ये हालत है कि ना तो ये इरिगेशन के काम आ रहा है, ना ही पानी के काम आ रहा है। इसके अलावा सर, जो पहले भी मैंने सवाल पूछा था, जो JJM में भी स्कीमें बन रही है वो भी इसी नाले पे बन रही है, इसी नाले को सोर्स मान के चल रही है। तो मेरा मिनिस्टर साहब से पहला सप्लीमेंट्री यही है कि जो इन्होंने कहा कि 44.85 लाख का, ये 44 करोड़ 85 लाख का ये इस साल में क्या है इसका अप्रूवल मिलेगा हमें, जो ये DPR है। दूसरा कि जो नाले निगली का है, ज्यादातर नाले निगली में मैंने देखा, इनमें मिनिस्टर साहब के रिप्लाई में आया कि नाले निगली पे ज्यादातर पैसा पिछले सालों में आया है और नाले निगली का पिछले साल DPR भी अप्रूव है। मगर जो पानी बरसात में जब पानी आता है, जो सैलाबी असर होता है, क्योंकि ऊपर नाले निगली में 2000 क्यूसिक वाटर आता है और नीचे 50 क्यूसिक वाटर निकलने की जगह नहीं है, जिससे हमारा दरनंबल से लेके तारजुआ वगैरह सब इफेक्ट होता है और सैलाब जैसी पोजीशन हो जाती है, फसलें बिल्डिंग सब खराब हो जाती है। और सर, सबसे अहम बात है कि ये तीनों नाले
जी 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूंसियों को इफेक्ट कर रहा है, वोगुरा, क्रीरी, सोपोर, रफियाबाद और पार्ट ऑफ बांडीपोरा भी। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं है, लोगों के जिंदगी का मसला है। तो इसमें मिनिस्टर साहब हमें पीने के पानी न आपाशी के क्या एश्योरेंस दे रहे हैं? थैंक यू। सर जहाँ तक ऑनरेबल रमेश साहब ने ये फरमाया है कि ये जो नीली नाला है ये काफी नुकसान भी कर रहा है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या इकदाम सरकार कर रही है। और ये जंगीर कनाल रिपोर्ट हमने यहाँ दी है कि इस प्रपोजल जो है नबार्ड से 47 करोड़ का जो है वो तैयार किया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है नबार्ड को भेजा जाएगा। हम सब कोशिश करेंगे कि नबार्ड से इस साल इसको अप्रूव करवाया जाए। और जैसे सब मालूम है कि ये जो कश्मीर का जो फ्लड एरिया है, जो उसमें प्लेन एरिया में जो नदी नाले जो है ये डाइवर्ट करते रहते हैं और इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं फ्लड प्रोटेक्शन में। जैसे डिटेल में बताया गया है यहाँ, अगर मुझे पढ़ने का मौका दिया जाता तो मैं ये पूरी डिटेल आपके सामने रखता। ऑनरेबल मेंबर साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि ये डिटेल सारी देख लेंगे आप, और जहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम लगेगी कि इसके अलावा कोई चीज है तो सरकार इंशाल्लाह वादामंद है, उसको इंशाल्लाह आप प्रायोरिटी बेस पे देखें। आपने 2 सप्लीमेंट्री पूछे, अरे पूछे सर ये नए जंगीर पे जो पिछले 10 साल से लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, डिफंक्ट पड़ा हुआ है, और क्योंकि इसी नहर से हमारा सोपोर टाउन का और नए जंगीर से जो भी इलाका है उसमें वाटर टेबल भी मेंटेन होता है हमारा, आपाशी हो या पीने का पानी हो, तो इस लिफ्ट इरिगेशन को स्टार्ट करने का क्या कर रही है गवर्नमेंट? सर ये डिटेल दी गई है। रंगीत कनाल जो टोटली हमने इसको शुरू किया है, और इसी तरीके से जो इसके आगे जो वाटर सप्लाई स्कीम पूरा है ये भी इस पे भी काम चल रहा है। और पूरू नाला के वाटर सोर्स जहाँ है उस पे जो वाटर सप्लाई स्कीम मजबूत, चकपुरा, नौपुरा और ये जो एरिया जो इसमें डिटेल में दिए हैं, सादत कॉलोनी, मॉडल टाउन वगैरह, इस पे वाटर सप्लाई स्कीम वाडूरा, वाटर सप्लाई स्कीम नथीपुरा, निगली नाला सोर्स जो है दूसरे उसमें वो आ गया। तो सर इस पे ये सब स्कीमें जो है ये डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो आपने ये पूछा कि जो सर्वे हुआ है इस पे जो आपका पार्ट भी है, तो DPR जो है बेस्ड ऑन डिटेल सर्वे दैट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ रिसोर्स if the scheme's provision of rapid sand filtration plant has been kept to ensure meeting the BAS 10,500 quality parameters. Surface water has been taken as a source which has sufficient discharge to ensure sustainability. पार्ट ई में डिटेल एक्सपेंडिचर बताया गया सर। ये FMP फेज सेकंड पे जो पोरू नाला है इस पे 75 लाख रुपया जो है वो रखा गया था। निगली नाला पे 1 करोड़ 1 लाख रुपया है। इसी तरीके से यूटी कैपेक्स से पोरू नाला पे 35 लाख है। निगली नाला पे 38.37 लाख है। निगली नाला नबार्ड 90 लाख है। और पार्ट थर्ड जो है हिमेडार पोरू नाला 15 लाख, निगली नाला 10 लाख और PRI ग्रांट सोपूर कंसल्टेंसी में 16 लाख रुपया जो है इसकी लागत से ये काम करता है। पूछे सवाल बहुत हो गया, 3-4 सवाल क्वेश्चन नंबर हो गया। कोई अगर कोई पूछना नहीं, क्वेश्चन 1237 मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Sir, review 1237. For the areas mainly Habar, Nasipura and Post Maidan, there are 2 water supply schemes taken up under Jal Jeevan Mission at an estimated cost of 1060.89 lakhs, which are presently under execution. An amount of Rs 780.91 lakhs have been
extended till date which includes an amount of Rs 7 to 7.68 lakhs incurred on procurement of pipes for utilizations in these schemes. Village Khanpura falls under the scope of water supply scheme Eskandarpura, Lalitpura are ongoing under NABARD at an estimated cost of 678 lakhs, against which an amount of Rs 380.16 lakhs stand expended till date, including Rs 344.46 lakhs incurred on procurement of pipes. There are 5 filtration plants taken up under JDM and concept consensus which are at different stages of completion. The completion of all above schemes and filtration plants will depend on the availability of funds under CSS and corresponding UT compound. ऑनरेबल स्पीकर साहब, या तो हाउस को धोखा दिया जा रहा है या मिनिस्टर साहब को धोखा दिया गया है। क्वेश्चन मेरा कुछ और है, जवाब कुछ और है। ये जो है जे स्कीम, इसमें अल्लाह के हाफिज है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मैं एलाबरेट करूं मिनिस्टर साहब को, ये खुद देखे कि ये कह रहे हैं 6 स्कीमें हैं जो कंप्लीट है, नियर टू कंप्लीशन। नाम नहीं दिया है 6 स्कीमों का। कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब पे कौन कौन सी स्कीम मांगी है मैंने कि कंप्लीट है कि कमीशन होने वाली है, कब होगी? तो जवाब आया है 6 स्कीमें हैं नियर टू कंप्लीशन। स्कीमों का ना नाम दिया है न ये दिया है कि किस हद तक ये कंप्लीट है। दूसरा, 678 लाख रुपीस इन्होंने पाइपों के लिए और 380 लाख रुपीस, ये बन जाता है 700 कुछ लाख रुपीस, जबकि 380 लाख प्लस 144 प्लस 47 ये बन जाता है 7 प्लस, जबकि 678 में ये कह रहे हैं कंप्लीट हो जाएंगी। 7 पॉइंट कुछ लिया है पैसा, फिर भी कंप्लीट पाइपें नहीं हुई है। नबार्ड के अंदर बोल रहे हैं स्कीम चल रही है, ये जे के अंडर स्कीम चल रहे हैं। खान साहब फारफलंग एरिया है, वहां 3 पुलिस केस हुए 5-6 गाँव में, सौरश में, खाफ में, सुतारन में, सिर्फ इस पर कि वहां पहाड़ी एरिया में पाइपें बिछाई गई थी, पानी कहीं नहीं। 1 किलोमीटर को अगर पाइप बिछाई गई है, 2 किलोमीटर कहीं है ही नहीं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। लोगों ने जुलूस निकाले और पुलिस ने उनको फिर पकड़ा कि अभी ये पाइपें लग जाएगी। यहाँ से कह रहे हैं कि ये जी नियर टू कंप्लीशन है। ये बता दीजिए कि या तो आप एक कमीशन बिठा दीजिए कि कितनी पाइपें लगी हैं, कितने रिजर्वर कंप्लीट हुए हैं, अगर हुआ है कोई, कितना कंप्लीशन में पैसा लगेगा। लोगों को एक एतमाद तो आ जाए कि हाँ जी हमें पानी मिल रहा है, साफ शफाफ जे स्कीम है। सिर्फ जे स्कीम, वो पता नहीं क्या जय है, क्या है पता नहीं। सर, ये एमएलए साहब बिल्कुल एमएलए साहब को एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मेरी स्कीमें मुकम्मल हुई, इनका कंसर्न सही है। लेकिन जब तक स्कीम सर फंक्शन नहीं होगी ये एप्रीहेंशन रहेंगे। हमने डिटेल में ये बता दिया है कि 75% फिजिकल स्टेटस इसमें एमएलए साहब को मैं दर्ज करूंगा कि ये देख लेंगे सप्लीमेंट्री में कि 75% स्कीम, 90%, 80%, 85% एंड 50%। वाटर सप्लाई स्कीम आलम, मैजूर, शमस, अकीर 75%। वाटर सप्लाई स्कीम पनाकुंड, रयाब 90%। वाटर सप्लाई स्कीम अरीजल, जैमपुरा 80%। वाटर सप्लाई स्कीम रावलपुरा 85%। वाटर सप्लाई स्कीम शंघांग 50%। इसी तरीके से ये काम चल रहे हैं सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ है और 2024 को इसको कंप्लीट होना था। कुछ हालात भी ऐसे रहे जिसमें ये जो बड़ा मिशन हम कंप्लीट नहीं कर पाए। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला जल्दी ये स्कीमें जो है हम कंप्लीट करेंगे। हमारा पूरा फोकस है, जब से उमर साहब ने
रियासत की कमांड संभाली है, वार फुटिंग पे सर ये स्कीमें चल रही हैं। और मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को गुजारिश करूंगा कि इनके एरिया में भी कुछ स्कीमें जो है हम जल्दी इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करेंगे और उनको बाकायदा उनका इनॉग्रेशन करेंगे। इसी तरीके से मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एक लिस्ट दे दी है, कुछ स्कीमें हमारी तैयार है पूरी स्टेट में, जिनका हम अनकरीब जो है इंशाल्लाह उनको इनॉग्रेट करेंगे और कौम के नाम वक़्फ़ करेंगे।